जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਬਾਇਸਡ ਔਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ, ਹਰ 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 ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੂਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮੈਨੇ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਆ ਕੇ
खुद फोन करके खुद सब कुछ कोआर्डिनेट करके सब कुछ किया, सब कुछ इत्थे तक कि लंगर प्रसाद क्या ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ, ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਿਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆ ਰਹੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करती हाँ, क्योंकि एक दो दिन तो बहुत चिंता तनाव है। तो मैं जिमें बाकी संगत दे सत्संग सुनती हाँ, जिमें अपने संगत दसदी है कि गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करो तो वो तनाव चिंता कम हो जाती है, गुरु जी कष्ट हरते हैं। तो ये सोच के मैं भी चलो मैं सोचा कि ठीक है मैं शुकराना सत्संग शेयर करती हाँ। संगत जी मेरी बच्ची कैनेडा दे विच है। थोड़े दिन तो बहुत अच्छा चल रहा सी, सब कुछ सही सीगा, पर होया कुछ ऐदां दा कि जिहड़ी मेरी बेटी दी ऑनर है जिस दे घर वो रहिंदी है, मतलब ऑनर हैगी है, उसके हसबैंड है, उसका एक उन्हों का छोटा जिहा बच्चा प्यारा जिहा, तो 6 लड़कियां उन्होंने तो इलावा 6 लड़कियां रहिंदियां ऑनर दे मतलब घर दे विच रहिंदियां। और 3 बैडरूम 4 बैडरूम है, एक जो कपल रहिंदा ते 3 बैडरूम च 2 लड़कियां रहिंदियां शेयरिंग दे विच। ते संगत जी सब कुछ सही चल रहा सीगा। अचानक पता नहीं एक दिन की हुंदा कि वो जिहड़ी ऑनर है उसदी सिस्टर आंदी है ते ऑनर दे नाल मतलब अपनी सिस्टर दे नाल लड़ाई झगड़ा करदी है, बहुत मतलब इल्ज़ाम भी लगांदी है, इत्थों तक कि उसके करैक्टर ते भी उंगलां चुकदी है। तो चलो देखो किसी दे भी घर च फैमिली च लड़ाई झगड़े होंदे आ, चंगा तो नहीं लगता। मेरी बेटी ने मैनू जिवें दस्सिया मैनू भी नहीं अच्छा लग्या सुन के कि मतलब कम से कम उसदी सिस्टर नूं कम से कम इन्ना तो सोचना चाहिदा सी ना कि होर भी घर दे विच लड़कियां हैगियां, क्यों किसी दे करैक्टर ते क्यों उंगलियां चुकणियां। ठीक है लड़ाई हैगी अपना बैठ के गल कर लो, नबेड़ लो। पर होया कि संगत जी हुण जिवें चलो मैं ऑनर नूं भी मैं गलत नहीं मानदी, क्योंकि वो बच्ची भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो घर च कलेश हुंदा ना संगत जी तो तनाव आंदा ही है, मतलब कुछ दिन तो रहिंदा ही है तनाव, टेंशन रहिंदी है। तो हुण संगत जी जिहड़े मतलब ऑनर का जिहड़ा घर है ना ऑनर का नहीं है, उसकी सिस्टर ने उसनूं दिता सीगा। पर जदों हुण घर च माहौल खराब हो गया तो वो जिहड़ी ऑनर है वो कहती है कि भी मैं घर जल्द तो जल्द खाली करना। तो मतलब लड़कियां नूं भी कहती तुसीं मेरे नाल मूव होना जिन्हें,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ 6 ਕੁੜੀਆਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਪਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ 6 ਦੀਆਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਖੀ ਬਾਕੀ 4 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਕਹਿੰਦੀ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਨਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਓਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ 2 ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 22 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਣਾਅ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ 22 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੀਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ 1-2 ਮਤਲਬ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਲ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਓ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮਤਲਬ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਇੰਸਟਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਲਓ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਬਸ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਓਨਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ, ਗੁੱਸਾ ਮਤਲਬ ਪੀ ਲਈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 28 ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ, ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਗਰੁੱਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर गुरु पा के चरणों में आई हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग हम चारों का है। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की नातिन, गुरु जी के नाती और उनके दामाद, चारों का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु मंत्र से आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं करूँगी कि अभी 2-3 दिन पहले, संगत जी परसों की बात है, संडे की, मैं गुरुपा का मूल मंत्र करके उठी थी, पूजा पाठ करके उठी थी। और संगत जी, मेरी दीदी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि संगत जी उनके बेटे और बहू ने बहुत लड़ाई की और मारपीट की। वो जबकि चल नहीं पाती हैं, आर्थराइटिस की पेशेंट हैं और उनको ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस है। और अभी कुछ दिन पिछले साल वो किडनी की प्रॉब्लम से परेशान थी। तो बहू ऊपर रहती है, बेटा ऊपर रहता है। वो क्या भर भर के उसके दिमाग में डाल दी कि 5 मिनट भी वो बेटा माँ के पास नहीं बैठ पाता। और हस्बैंड नहीं है उनके, दीदी के,
और ये लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो दीदी ने कॉल लगाई और बीच वाली सिस्टर को मेरे कॉल लगाई थी, उनसे बात हो रही थी, तब तक बेटा आकर उनसे झगड़ा करने लगा, क्योंकि दीदी के जेठ के लड़के ने 45,000 रुपये मांगे थे और ये इसको घर बुलाया था, बेटे को दीदी के। ये गया और वहाँ से नाराज़ होकर आया और घर में दीदी से झगड़ा करने लगा कि बताओ, उन्होंने बुलाया मुझे, उनको पैसे चाहिए थे तो मुझे अपने मेरे घर आकर मांगते। दीदी ने समझाया संगत जी कि बड़ा है वो, और अगर वो हर मुसीबत पे खड़ा रहता है, अगर बुला लिया तुमको तो कौन सी बड़ी बात है। क्या वो 45,000 रुपये मांग रहे हैं मुझसे कि बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, और मैं कहाँ से दूँ। मैंने अभी घर खरीदने, नया फ्लैट खरीदा है उसने, तो नया घर खरीदा है, मैं कहाँ से दूँ। दीदी ने कहा तुम मना कर दिए होते कि हम नहीं दे सकते अभी। और जिसने पैसा लिया उसने दिया नहीं, उस पर दीदी को मारने लगा, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। तो बस उसी पे फिर जो बीच वाली दीदी बात कर रही थी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि इन लोगों की बदतमीजियाँ बहुत दिन से चल रही थी। संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र पढ़ रही थी, पूजा करके उठी तो दीदी ने कॉल लगाई हमको, बीच वाली दीदी ने, कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा, मेरे हस्बैंड अंकल और बेटा बाहर गए थे, तो कोई नहीं, मैं और मेरी बेटी थे, गुरुपा की नातिन वो थे, हम लोग थे। तो मुझे घबराहट होने लगी, तो मैंने सुना, जब ऑडियो भेजा तो मैंने सुना, तो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आई, तो मैंने कॉल किया उसको और सारी बात, वो मेरी कॉल नहीं उठाया, क्योंकि मैं फिर बहुत बुरी तरह से डांटती हूँ उसको। तो उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, और फिर सिस्टर ने मेरी, जिन्होंने रिकॉर्ड किया था, उन्होंने कॉल किया और बहुत डांटा, और डांटने के बाद वो दोनों जाकर बहुत लड़े। वो इतना रो रही थी, इतना, एक तो बीमार कमज़ोर, और बहू उनसे इतना काम कराती है संगत जी, इतना काम करवाती है, ढेरों लहसुन दे देगी, हाथ की उंगलियां उनकी मुड़ी हुई हैं, ढेरों कपड़े बच्चों के प्रेस करने को दे देगी, अपने बड़े बड़े सलवार सूट प्रेस करने को दे देगी, कैमरा लगवा ली है, सबसे कहेगी कि ये गिरे ना इसलिए कैमरा लगवाए हैं। संगत जी, इतना परेशान करती है, ऊपर जैसे देखेगी ये नाश्ता करने जा रही है, बस तुरंत उतर आएगी, और पहला निवाला मुंह में गया कि इसका उधम शुरू, कहीं कुशन फेंक रही है, कहीं तकिया फेंक रही है, पूरा ड्राइंग रूम उनका मतलब नीचे का खराब कर देगी। इसके जाने के बाद वो उठ के झुक झुक के सब उठाती है, और बड़े बड़े सूट दे देगी कि प्रेस करिए। दीदी, कहीं हम झुक के नहीं प्रेस कर पाते इतना, और हमारी पीठ और कमर दर्द होने लगती है। ठीक है, फिर खाना नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगी, तो बेचारी करती हैं, बहुत ज़्यादा तंग करती है। और बेटे को तो इतना मालूम नहीं, वो बताती नहीं कि आपस में झगड़ा होता है, घर में कलेश होता है, तो बहुत कुछ वो नहीं बताती। तो जब दीदी ने, बीच वाली सिस्टर ने सुन लिया तो वो बहुत गुस्सा आई, फिर हमको कॉल करके ऑडियो भेजी, तो मेरे भी बहुत तेज़ गुस्सा लगी। फिर दीदी ने कॉल किया, जिनके साथ ये सब हुआ था, उन्होंने मुझे कॉल किया, ये आकर फ़ोन छीन ली, और मुझसे इतना झगड़ा कर रही कि आप लोग मेरे फैमिली मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं। हमने कहा ये तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं है, तुम हस्बैंड वाइफ, संगत जी, तुम हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ये तुम्हारा, वो मेरी बहन है, अगर उनको कोई दिक्कत है तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे। अगर हस्बैंड नहीं है, जीजा जी मेरे नहीं हैं, तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि तुम इतना तंग क्यों कर रही हो उनको। वो गांव से रिलेटेड है संगत जी, इतनी बदतमीज है, ऐसी कोई बहू हमारी फैमिली में आज तक नहीं आई। तो उल्टा खूब झगड़ा कर रही, मैंने एलएलबी किया है, मैं कोर्ट तक खिंचवा लूंगी। मैंने कहा यहाँ भी कोई कम नहीं है, यहाँ जज, एडिशनल जज सब हमारे रिलेटिव्स हैं। तुम बाद में करोगी, अगर एक ऑडियो हमने भेज दिया ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। इतना झगड़ा की, मैं गुरु मंत्र करती रही, मेरी तो तबीयत खराब होने लगती, मैंने दवा खाई, और इतना उधम करी, इतनी बदतमीजी करी ये। मैं गुरु जी का मंत्र करती रही कि गुरुपा ये कष्ट किसी तरह हटाइए, किसी तरह दूर करिए ये कष्ट। बहुत बदमाशी करी। आज दीदी ने कॉल किया, फिर फ़ोन छीन ली, फिर झगड़ा करने लगी कि क्यों कॉल करती हूँ। वो चाहती है ये कॉल करके अपनी बहनों को ना बताएं, ये बात फैले भी ना, और हम अंदर अंदर इनको परेशान करके मार डालें।
ये अंदर घुट घुट के मर जाएं, ना कहीं लेकर जाते हैं। अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, सबको बुला लेगी, ऊपर रहेगी, खाना बनाना कुछ भी बनाती है, इनको नहीं देती है नाश्ते में। सिर्फ 2 रोटी नाश्ते में, एक रोटी दाल चावल सब्जी खाने में, और शाम को कोई नाश्ता नहीं देती। ऊपर सूजी का हलवा बनाएगी और पकौड़ियाँ वगैरह जो भी बनाती, थोड़ा सा दे दो। अगर बाहर की चीज़ मना है, डॉक्टर ने मना किया, तो घर की बनाई चीज़ तो दे सकती हूँ। नहीं देगी। 1 पैकेट बिस्किट देगा, 1 महीना चलेगा। संगत जी, इतना ज़्यादा हम लोगों को परेशानी, इतना रोना, गुरुपा से अरदास करते हैं, गुरुपा उनके घर में शांति बनाए रखें, और जाने कौन सा जादू तंत्र मंत्र करके लड़के को तो एकदम अपने कब्जे में करिए। जो लड़का मम्मा मम्मा पीछे पीछे लगा रहता था, वो ऐसा बदल गया है कि एकदम उसी की भाषा बोलता है। हम लोगों से भी भिड़ंत करने को तैयार रहता है, इतना बदतमीज हो गया है। मैंने उस दिन उसको कॉल करके इतना डांटा। मैंने कहा कि ये क्या, मेरा परिवार, मेरा फैमिली मैटर, ये क्या बात है? हैं? तुम इतने बड़े हो गए हो, ठीक है तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, इतने बड़े हो गए हो, हम इतने बड़े हैं, ये क्यों पीछे लगी रहती है, क्यों इतनी बदतमीजी करती है? तब संगत जी वो शांत था, कुछ बोला नहीं। कहे क्यों कॉल किया था तुमने? हमने कहा हमने नहीं, मम्मी ने कॉल किया था और इसने छीन लिया। हम कभी जल्दी कॉल नहीं करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता, हम कॉल नहीं करते हैं। इसी पे इतना, कल परसों से बहुत दिमाग ख़राब। आज फिर दीदी ने धीरे से कॉल किया, तो इसने व्हाट्सएप पे हम लोगों को ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, दीदी को ब्लॉक कर दिया। फिर इसने कॉल किया, दीदी ने कॉल किया तो मैंने पिक किया, वैसे ही धड़ 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 उतर के आई, छीन ली फ़ोन और मुझसे लड़ना शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा शांत हो जाओ, तुम क्यों इतना, नहीं आप क्यों मेरे फैमिली मैटर में, अपना फैमिली मैटर देखिए, अपना फैमिली देखिए, हैं ये सब बातें। खैर संगत जी, बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान। गुरुपा से अरदास करते हैं, गुरुपा उसको सद्बुद्धि दीजिए। ऐसी उजड़ टाइप की औरत कभी नहीं आई हमारी फैमिली में, उसको सद्बुद्धि दीजिए। दीदी की लाइफ क्या है, वो क्या ही आगे जी पाएंगी, गुरु जी जानते हैं, पता नहीं। संगत जी, इतना मन दुखी हो गया, 2-3 दिन से इतना दिमाग अपसेट था कि बता नहीं सकती। आज गुरुपा का मैसेज आया कि शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, हर बात का शुक्राना, उनको खाना देने का शुक्राना, हम सबको खाना देने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुपा, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल के साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना, अपने नाती नातिन को आशीषित करने का शुक्राना। उसके भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी आशीषित करिए गुरुपा, पता नहीं क्या करवाने वाली है। उन दोनों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, कि वो लोग, कायदे से थोड़ी सी ज़िंदगी बची है हैं, और गुरुपा आपसे अरदास है, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। जो भी उन लोगों ने एक दूसरे पे ब्लैक मैजिक किया हो, वो ख़त्म करिए, वहीं भस्म करिए, उस लड़के का भस्म करिए, उसका दिमाग ठीक करिए। वो भी बीपी का पेशेंट है। गुरुपा, मैं तो हार्ट की पेशेंट, मैं तुरंत अभी दवा खाई, इतनी घबराहट हो रही थी मुझे, मैंने अभी जल प्रसाद पिया, तब मुझे थोड़ी राहत आई। संगत जी, अरदास करिए कि ऐसे परिवारों में ऐसी लड़कियां आकर इतनी तबाही मचा देती हैं। गहना मेरे नाम करिए, घर मेरे नाम करिए। अरे उनके बाद तो सब तुमको क्यों नहीं तसल्ली है कि तुम अकेली हो, तुम्हारा ही सब है, ये सब क्यों नहीं तसल्ली है? हम लोग 3 भाई थे, लेकिन सास, मेरे मदर इन लॉ, हम साथ में रहते थे, हमारे साथ क्या, हम लोग रहते थे। कभी नहीं कोई चीज़ की मांगना कि ये दीजिए हमको, वो दी, कुछ नहीं। डेथ हो गई, तीनों भाइयों का नाम चढ़ गया, जो है उनका वो सबका है। तो कहीं कोई लालच जैसी चीज़ें नहीं, उसे सब्र ही नहीं। 1,500 रुपए उनके पास भाई दूज के रखे हुए थे। जब अभी मौसी के लड़के मेरे आए थे, वो और ताऊ जी के बेटे दोनों लोग गए थे टीका करवाने, क्योंकि मेरा भाई तो नहीं रहा, तो हम लोगों से सबसे टीका करवाए थे संगत जी। वो भी कहाँ से आया, कहाँ से आया। गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए ऐसे लोगों को। संगत जी, अरदास करिए गुरुपा से कि उसको सद्बुद्धि दें। बहुत माड़े समय से दीदी भी निकल रही हैं संगत जी, जो भी है।
गुरु पास से अरदास करते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं हम लोग। गुरु पा आप रक्षा करिए। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरु पा के मूल मंत्र से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, हर चीज को सही रखने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जहाँ गुरुजी का आशीर्वाद होता है वहाँ चमत्कार होना तय है। आज यानी 21 मार्च मंडे का ये शुक्राना सत्संग है। कुछ दिनों से बेटा यहाँ आया हुआ है, तो आज मंडे को दोनों बाप बेटे में कुछ अनबन हो गई। धीरे धीरे उनकी बातें झगड़े का मोड़ पर आ गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो ये क्या कर रहे हैं, कैसे आपस में लड़ रहे हैं। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से कहा कि आज तो मंडे है, तू कड़ा प्रसाद बनाना भूल गई है। कड़ा प्रसाद बना और मुझे भोग लगा और मंत्र जाप चला के रख। और बेटी ने जो फुल ब्लैक ड्रेस पहन के रखा था वो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने उसे चेंज करने को कहा। तो जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, 15 मिनट मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा। फिर हम सब ने वो कड़ा प्रसाद खाया, मंत्र जाप चला के रखा और बेटी ने भी अपनी ब्लैक ड्रेस चेंज कर दी। कड़ा प्रसाद और मंत्र जाप ने करामात कर दिया। घर में जो महाभारत चल रही थी वो रामायण में बदल गई। दोनों बाप बेटे का आवाज जो इतना था वो धीरे धीरे हो गया और वो प्यार से बात कर रहे थे। ये है करामती कड़ा प्रसाद का कमाल। और मैंने मंत्र जाप भी चला के रखा। इतनी मेहर करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी। ये घर आपने संभाल लिया गुरुजी, आपका शुक्राना 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 है गुरुजी। और ये बात बेटी ने भी अनुभव किया। उसने कहा, मम्मी कितना इन लोग झगड़ रहे थे आपस में, कड़ा प्रसाद खाते ही दोनों चुप हो गए। वो बोलती रही वो वो बोल रही थी, मम्मी गुरुजी घर में विराजमान है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ इस अरदास से। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास।
तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरी सूतन धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। शुक्राना 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 गुरु जी। थैंक यू राज अंकल जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना राज अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मंजू बोल रही हूँ पालम से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं इस सुबह के 11:05 हो रहे हैं। मेरा शुक्राना सत्संग है सुबह का। मैं संध्या वेला नहीं कर पाती हूँ। मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ, संगत से भी क्षमा चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं संध्या वेला करने की, लेकिन मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है संगत जी। इस वजह से मैं संध्या वेला नहीं कर पाती हूँ। मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। इसलिए मैं अभी शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आदेश से गुरु जी करवा रहे हैं। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, वही कर पाएंगे। मेरी तो कोई बात नहीं करने की, गुरु जी ही करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। जो गुरु जी बोलेंगे वही बोलूंगी मैं। ये संगत जी क्षमा चाहती हूँ, कोई कुछ गलती हो जाए तो। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 2024 में गुरु जी से जुड़ी थी, लेकिन बस परिस्थितियाँ कुछ वजह से मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मैं कभी शुक्राना नहीं कर पाई। पता नहीं, शायद पता नहीं कि शायद प्रभु की, शायद हमारे गुरु महाराज की इसमें कुछ सजा होगी, या मेरी कुछ कमियां होंगी, इस वजह से मैं शुक्राना नहीं कर पाई संगत जी। मैंने भी 2-3 बार से सत्संग आधा मैसेज आता है खाली कर दिए गुरु महाराज जी का उत्तर, शुक्राना कर शुक्राना कर। आज गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ संगत जी। एक एक अंकल जी का चैनल पे मैंने 2 शुक्राने शेयर करे भी थे, लेकिन पता नहीं शायद कुछ मेरी किस्मत में नहीं होगा शायद, इसलिए अंकल जी ने शेयर नहीं करे। कोई बात नहीं, लेकिन अंकल जी आप शेयर कर दीजिएगा। मेरे शुक्राना सत्संग, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा।
मेरे गुरु महाराज जी बहुत साथ देते हैं, बहुत, हमेशा हमेशा पिता बन के, भाई बन के, सखा बन के, हमेशा हमेशा छत्र छाया बन के हमारे साथ रहते हैं हमेशा। संगत जी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मेरे मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मेरे सर में भी बहुत दर्द रहता है, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है संगत जी। ये बीच में बहुत ज़्यादा मेरी हालत खराब हो गई थी, बहुत तबीयत खराब हो गई थी मेरी। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? लेकिन मैंने गुरु गुरु पापा जल प्रसाद चंदन तिलक मिला के लगाया, गुरु मंत्र पढ़ा। मुझे थोड़ी देर में मेरे को धीरे धीरे करके आराम मिलने लगा, बहुत आराम मिला संगत जी। हमारे गुरु महाराज जी बहुत बहुत अच्छे हैं, ब्रह्म महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं हमारे गुरु का। शुक्राना 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 हमारे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना है हमारे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और संगत जी, गुरुपा ने अपनी माँ के बहुत सारे कष्ट काटे हैं, बहुत सारी तकलीफें काटी हैं हमारी। हमेशा गुरुपा ये बोलते हैं, तुम्हारी प्यारी बेटी है, चिंता न कर, ये सारी परेशानियां दूर होंगी, सारे कष्ट दूर होंगे, हमेशा राज करेगी, रानी बन के रहेगी, तो परेशानियां दूर होंगी। संगत जी, मेरा एक सत्संग ये भी है कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं सोच रही हूँ, मैं पता नहीं क्या करूँ, अचानक मैं एकदम से मैंने अपनी बेटी को जल प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया, मंत्र जाप किया सत्संग। संगत जी, धीरे धीरे मेरी बेटी को आराम मिलने का, तो मेरी बेटी कह रही, मम्मी आपके गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं, देखो मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया एकदम से, अचानक में जादू की तरह। मैंने कहा हाँ बेटा, हमारे गुरु जय महाराज जी गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। घर में सुख शांति बख्शो गुरुपा, सबका आपस में प्यार बख्शो गुरुपा। बड़ी बहू को सद्बुद्धि दो गुरुपा। मैंने उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगी गुरुपा। मेरे को नहीं कुछ रीति रिवाज का पता था गुरुपा। मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, अगर मैंने उसका दिल दुखाया है अनजाने में, तो मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मेरे गुरुपा। उस बच्चे को भी क्षमा कर लो, उसके मन में बहुत नेगेटिविटी है, उसके मन में बहुत गलत विचार चल रहे हैं गुरुपा। उसको शांत करो, शांत करो, शांत करो मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब कुछ अच्छा चल होता है, थोड़े दिन बाद फिर ना कुछ होता आता है गुरुजी। कैसे इस धर्म में चलूँ गुरुपा। जो कुछ भी होता है सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं। बड़े बेटा कुछ करता है तो बहू मुझे दोषी ठहराती है, छोटे बेटा कुछ करता है तो मुझे दोषी ठहराया जाता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है गुरुपा। मेरे कितने कर्म कटे हैं जो मुझे अब तक भुगतना है, सब जलील करने पे लग जाता है मुझे। मैं कितनी जलील होंगी गुरुपा, कितनी जलील हूँ। मैं अपना सब आत्म सम्मान खो गया हूँ, परिवार को एकजुट करने में लग जाती हूँ गुरुपा कि मेरा किसी तरह ये परिवार एक रहे, घर में शांति रहे, सुख रहे।
समृद्धि रहे। लेकिन गुरुपा बहू बहू ही होती है, वो बेटी नहीं बन पाती। मैं उसको बेटी बना के रखना चाहती हूँ, लेकिन कभी भी बहू बेटी नहीं बन सकती। आज मैंने सबक सीख लिया है मेरे गुरुपा। और कभी सास कितनी ही माँ की तरह प्यार करे, दुलार करे, लेकिन कभी बहू उसको माँ के रूप में स्वीकार नहीं करती, उसको सास ही बने रहना देना चाहती है। मेरे गुरुपा मेरी दुख तकलीफ दूर करो। मेरे शरीर में जलन रहती गुरुपा, सब जानते हैं, उसको ठीक करो गुरुपा। मैं अरदास कर रही हूँ, मेरे पति ईश्वर को ठीक करो गुरुपा, उनके अंदर शक्ति पैदा करो गुरुपा। वो भी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, वो भी मेरे तरह ऐसे भोले भाले हैं, वो भी किसी को दुख देना नहीं चाहते, वो भी किसी को कुछ नहीं करते। सब नौकर जाकर हमारे को गुरुपा, सब आप देखो गुरुपा। मैं टूट चुकी हूँ, मैं बिखर चुकी हूँ गुरुपा, मैं बहुत टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ। मैं अपना दुख दर्द किसी को नहीं शेयर कर सकती गुरुपा। आप मेरे पिता हैं, आप मेरी अरदास सुनो गुरुपा, मेरी अरदास सुनो गुरुपा। कुछ ऐसा करो जो रुका हुआ धन आ जाए गुरुपा। मैं इन दोनों बच्चों को ही जैसा ही करूँगी, कोशिश तो पूरी है गुरुपा। रुका हुआ धन वापस दे दो गुरुपा, दिला दो गुरुपा। कहीं पे रुका हुआ धन है गुरु को दिला दो गुरुपा। 16 लाख जो आए आपका शुक्राना गुरुपा। कल ही एक पेमेंट आई है गुरुपा, उसका भी शुक्राना। रुका हुआ धन ला दो गुरुपा, रुका हुआ धन गुरुपा। सारे घर की समस्याओं को दूर करो गुरुपा। आपका आनंद हम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपा। आप मेरे हमेशा हम संग रहते हैं, आप मेरा सब सदा मेरे हम संग रहते हैं गुरुपा। मेरी तकलीफ़ों को दूर करो गुरुपा। मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ मेरे बाबा। मेरी तकलीफ़ों को अंत करो मेरे गुरु पिता। शुक्राना है गुरु पिता आपका, लख लख बार शुक्राना गुरु पिता, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे नहीं पता मैं जो सत्संग भेजती हूँ कोई मेरा सत्संग सुनता है कि नहीं सुनता है, लेकिन गुरुपा आप तो सब जानते हैं कि मैंने आपका शुक्राना हर समय आपका शुक्रिया 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 करती रहती हूँ गुरुपा। मुझे बचा लो गुरुपा, मुझे बचा लो, इस मोह माया के जाल से मुझे मुक्त करो गुरुपा। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। इसमें चाहती हूँ छोटी बेटी की शादी है आराम से शांतिपूर्वक हो जाए गुरुपा। सबको शांत करो, सबका मन शांत करो गुरुपा। अगर अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया है, मुझे क्षमा करना मेरे बाबा, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी। अब आपके हाथ में मेरे नहीं है, आपके हाथ में गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती, आप कहते हैं कि किसको मैं कुछ नहीं कहती, मैं कुछ नहीं कहती गुरुपा। चाहे कोई आस पड़ोस हो, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे नौकर चाकर हो, कभी कभार गुस्सा ज़रूर आ जाता है गुरुपा। इंसान ही हूँ, अगर मेरे साथ कोई गलत होता है तो मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरे कोई साथ नहीं देता, मेरे कोई साथ नहीं देता। बेटा भी मुश्किल में आ जाता है कि मेरी सुने या अपनी पत्नी की सुने। मैं उसको भी नहीं कुछ कहती गुरुपा। मैं इसके परिवार वालों को मैंने कुछ दुख दर्द देना चाहती गुरुपा। मैं कभी कुछ से किसी से शिकायत करती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो संगत जी, आज गुरुजी ने यूट्यूब में सत्संग सुनाया जिसमें लिखा था तेरे शरीर की गांठ बड़ी हो रही है, सत्संग सुन। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और तेरे बेटे को बड़े हादसे से बचाने के लिए तुझे सत्संग भेजा है। शुक्राना गुरुपा, मैंने वो सत्संग सुना,
शुक्राना शुक्राना, आप पल पल रक्षा करते हो, सत्संग सुना के कष्ट को काटते हो, हमारे बड़े संकट को अपने ऊपर लेते हो गुरुपा। मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, आप पूरे संगत का कष्ट काटते हो, पूरे संगत का तकलीफ़ अपने शरीर पर लेते हो, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तकलीफ़ समझ सकती हूँ गुरुपा, हमें क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं और गुरु जी ने एक बार से सुनाया कि गणेश जी तुझसे नाराज़ हैं, तो मैं गणेश जी से कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में गणेश महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गणेश महाराज से मैं माफ़ी मांगती हूँ। कान पकड़ के उनके चरणों में सिर रख के मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मेरे से गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा आप मुझे कभी नाराज़ मत होइए, मैं तो ऐसे ही बेअकल कम अकल की हूँ, मुझे जल्दी समझ में भी नहीं आता है सॉरी मुझे समझ में नहीं आता है गुरुपा कोई संकेत, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे उपाय गुरुपा बताते हैं, मैं वो उपाय भी नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। पता नहीं शरीर में आलस है क्या है, मैं मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ, सोचती हूँ फिर शाम होते होते फिर ये होता है कि रहने दो, घर में ही पूजा करती हूँ। तो गुरुपा जो भी उपाय मेरे से नहीं हो पा रहा है गुरुपा, वो आप हाथ पकड़ के मेरा उपाय करवाइए गुरुपा। और आप मुझसे नाराज़ मत होइए गुरुपा, मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप कितनी तकलीफ़ हमारे अपने ऊपर लेते हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। आप मुझसे कभी नाराज़ मत होइएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी आजकल गुरुपा ने इतना रोज़ दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में रोज़ दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत से सत्संग में ऐसा सुनती थी, संगत लोग बताते थे कि गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन दिया। मैं नहीं देखती थी, तो मैं कहती थी सभी संगत को देखती थी बटरफ्लाई, मुझे तो बटरफ्लाई दिखती भी नहीं है। तो मैं रोज़ देखती थी लेकिन मुझे दिखती नहीं थी, लेकिन इधर भी रोज़ मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं अपने परिवार के तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अपने बेटे के तरफ से, अपने दोनों बेटियों के तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और अपने जमाई के तरफ से, अपने पति हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे हस्बैंड जो भी कुछ बोलते हैं गुरुपा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो अभी जुड़े नहीं हैं, उनको विश्वास उतना नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप नाराज़ मत होइएगा गुरुपा, मेरे से कभी भी नाराज़ मत होइएगा, कभी भी मत नाराज़ मत होइएगा गुरुपा। जो भी मेरे से गलती हुई मैं आपके चरणों में सिर रख के क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ। मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। अब कोई सत्संग बहुत लंबे होते हैं, 1-1 घंटे के होते हैं, और कुछ सत्संग ऐसे होते हैं बच्चों के कष्ट का, हादसे का, पुलिस केस का, इस टाइप का आता है। तो मुझे ऐसा लगता है पहले ये सत्संग सुन लो, तो मैं उन सत्संग को पहले सुनती हूँ गुरुपा। इस वजह से कुछ सत्संग छूट जाते हैं गुरुपा, तो इसलिए आप नाराज़ मत होइएगा गुरुपा। आप ये मत कहिएगा कि मैं सत्संग नहीं सुनी, मैं दिन भर सत्संग सुनती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और मैं क्षमा चाहती हूँ, आप हमारे बहुत सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। मैं तकलीफ़ को समझ सकती हूँ, आपको कितने संगत कर लेते हैं, सारे संगत का आप तकलीफ़ अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप कभी भी मेरे से नाराज़ मत होइएगा गुरुपा। आप इसी तरह अपना हाथ हमारे परिवार पर रखिएगा, मेरे बच्चों पर, बेटियों पर, दामाद पर, और मेरे हस्बैंड पर गुरुपा, मेरे भाई बहन, मम्मी, सब पर हाथ रखिएगा गुरुपा। सारे संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा, सब लोग सुखी रहें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। लास्ट में मैं यही कहूँगी गुरुपा, आप मेरे से कभी नाराज़ ना होना गुरुपा, कभी भी नाराज़ ना होना गुरुपा। तो मैं संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। कल फिर शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।